So we have started with our unit number 1. It's energy conversion, energy sources and its conversion. Okay, this is our unit number first, introduction of energy sources and its conversion. So in this unit, we have learned about the definition of energy, what is the unit of energy, then definition of power, what is the unit of power, then what are the different energy sources. Okay, that is the conventional and non-conventional energy sources. Then next, difference between conventional and non-conventional energy sources. Then types of power plants. Okay, now in these types of power plants, up till now we have covered this thermal or steam power plant that we had covered. Then next is the hydroelectric power plant, that also we had covered. Okay, then next is the nuclear power plant. Now this power plant we also covered. Now solar and wind energy power plant. Okay, wind is the remaining one, solar we had covered. Okay, in last lecture we had covered the solar power plant. Okay, now in today's lecture we have to cover the geothermal and wind power plant. Okay, so just tell me what is the working fluid in the thermal power plant, working fuel in thermal power plant. Coal and oil. Okay, it is simply the coal or oil. Okay, so this is the working fluid in the thermal power plant. Now, what is the working fluid in the hydroelectric power plant? Water. Water. Floating Water. water. It is just the water. Now, what is the working fluid of nuclear power plant? Uranium Uranium. 230. Element like Uranium uranium. 235. It's uranium 235. Okay, then also thorium or plutonium that we also can use. Okay, then what is the working fluid for the solar power plant? Sunlight. Light. Light. Okay, Sunlight. it is solar. Yeah, solar energy. It is the solar energy. Okay, so this is the working fluid for different power plants. Now we had covered this one. Now next is the geothermal power plant. अभी हमें क्या करना है, geothermal power plant स्टडी करना है. So geothermal power plant, आपको पता है geothermal power plant में क्या होता है? Yes, yes, in geothermal power plant क्या होता है वहाँ पे? किसी को पता है? No, sir. Okay, actually in geothermal power plants, what we are doing, we are using the hot water coming from the earth. अर्थ से जो हॉट वाटर आता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, टरबाइंस को रन करते हैं. तो हमने जैसे देखा है कि स्टीम पावर प्लांट जो है, स्टीम पावर प्लांट में हमने क्या किया कि कोल का यूज करके हीट जनरेट की, और उस हीट का यूज हमने किस लिए किया, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में करने के लिए उस हीट का यूज हमने किया. नाउ हियर in this geothermal power plant, what we are using, the fuel is the earth heat energy itself. जो अर्थ की हीट एनर्जी है वही इसका क्या है, फ्यूल है. सो उस हीट एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सो वी आर यूजिंग द हीट एनर्जी ऑफ अर्थ क्रस्ट to convert the water into steam, and that steam will run the steam turbines. Okay, now here let's see, the geothermal energy is the heat. Okay, here let's see, geothermal energy is the heat derived within the subsurface of the earth. It is the subsurface of the earth, water and or steam carry the geothermal energy to the earth surface. मतलब earth surface के नीचे जो कुछ heat energy है उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं कि वाटर को हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ कोई बता सकता है कि एक्चुअली ये जियोथर्मल एनर्जी है ये कहाँ से आई? यस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वन? Earth crust. अर्थ क्रस्ट. ओके, Earth core. अर्थ कोर. ओके, लेट्स सी, बहुत साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ओके आप सभी को तो पता है कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से हुआ था. सो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, एक साथ मर्ज हो रहे थे, तो वो जो सूरज था
सन के बगल में ही क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। सो वो पार्टिकल जो सन के बगल में घूम रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, वो पार्टिकल्स सन के बगल में भी घूम रहे थे और वो एक साथ अटैच भी हो रहे थे। सो उस टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, इट्स गेट स्टोर्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो कोर है उसमें सबसे अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई ना। अभी आप सभी को तो पता है कि अर्थ के अंदर हम जैसे जैसे जाते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पे भी होता रहता है। जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका रिएक्शन वहां पर भी होता रहता है। सो उसी रिएक्शन की वजह से वहां पे हीट एनर्जी क्या होती जाती है, फॉर्म हो जाती जाती है। हीट एनर्जी वहां पे फॉर्म होती जाती है। सो लगभग अगर आप देखें तो अर्थ का जो इनर कोर है, इस इनर कोर का टेम्परेचर अगर आप देखें तो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस है। लगभग इट्स around the 4000 डिग्री सेल्सियस। नाउ 4000 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द वेरी लार्ज टेम्परेचर अर्थ के कोर के पास। नाउ सम साइंटिस्ट आर सेड दैट, कुछ कुछ साइंटिस्ट का कहना ऐसा भी है कि ये जो टेम्परेचर है अर्थ के कोर का टेम्परेचर है, दैट इज मोर देन द सन टेम्परेचर। आपके जो सन है उसके टेम्परेचर से भी क्या है, ये ज्यादा है। ओके, दे आर सेइंग दैट वन। ओके, बट वी डोंट वांट टू गो इन दिस controversy, just we are just learning whatever we have. We have the data that the earth core has a temperature around 4000 degree celsius. So इतना टेम्परेचर कहाँ पे है, अर्थ के कोर में है। now can anybody tell me what is the radius of earth? yes 6,400 kilometer. 400 kilometer. yeah, it's around 6400 kilometer. It's around 6400 kilometer. okay, सो इतनी जो रेडियस है, इतनी रेडियस तक हम ड्रिल का यूज नहीं कर सकते। इज इट, या कर सकते हैं? No, sir. 4400 किलोमीटर तक ड्रिल मार सकते हैं क्या? No. नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी देखिए कि इसमें क्या होता है, अभी ये जो अर्थ है, ये अर्थ, यहाँ पे जो कोर रहता है, ये जो कोर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस कोर, ओके आई विल चेंज द पेन कलर। स्टूडेंट जस्ट म्यूट योर माइक। सो ये जो अर्थ का कोर है, सो इस कोर में जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस। सो इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो कोर के बगल में जो रॉक्स रहते हैं, रॉक्स, ये जो रॉक्स है वो रॉक्स क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ओके, इन रॉक्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड उस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। उन रॉक्स को क्या बोलते हैं हम, मैग्मा। द रॉक लेयर विच इज नियर टू द अर्थ कोर, अर्थ कोर के नियर जो रॉक्स है, मोल्टन रॉक्स, दिस इज द मोल्टन रॉक्स। ये जो मोल्टन रॉक्स रहते हैं, इन मोल्टन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। वी आर कॉल्ड दिस मोल्टन रॉक एज अ मैग्मा। नाउ लेट्स सी, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट अर्थ सरफेसेस। अर्थ सरफेस जो है उसका अलग अलग लेयर है। सो ये जो मैग्मास है उसके ऊपर भी क्या रहेंगे, आपके रॉक्स का लेयर रहेगा, उसके ऊपर भी रॉक्स का लेयर रहेगा, उसके ऊपर जमीन का लेयर रहेगा, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर रहेगा। इज इट? और उसके बाद क्या रहेगा, आपकी एयर रहेगी। इज इट? सो रॉक्स, रॉक्स जो है, रॉक्स का लेयर होने के बाद क्या होता है, मिट्टी का लेयर आ जाता है, मिट्टी का लेयर आने के बाद डायरेक्टली एयर का लेयर आ जाता है। इज इट? यस Yes, sir. Yes, sir. यस। नाउ यस, इन अर्थ सरफेस वी हैव आल्सो वाटर लेयर। अर्थ सरफेस में हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर लेयर भी है। बिल्कुल है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस, हम जैसे जैसे, यस, जैसे जैसे हम जमीन के नीचे जाते हैं, आप जो घर में ड्रिल वगैरह मारते हो, बोरिंग मशीन से, सो वहां पे बोर आता है ना, बोर से क्या आता है, पानी आता है। तो पानी वो कहाँ से आता है, आपके अर्थ के सरफेस से नीचे आता है ना पानी। सो वहां पे क्या है कि अर्थ के सरफेस के नीचे पानी का भी लेयर है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ये जो अर्थ कोर है, इस अर्थ कोर के हाई टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स रहते हैं वो रॉक्स क्या हो जाते हैं, पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। इट these are called as the molten rocks, and these molten rocks are also called as the मैग्मा। ओके, नाउ ये जो आपके मैग्मा के लेयर्स हैं, वो उसके ऊपर जो लेयर रहता है इसको हम बोलते हैं मेंटल लेयर। उसके ऊपर हम बोलते हैं मेंटल लेयर। मेंटल लेयर मतलब दिस इज द सेम लेयर ऑफ द रॉक्स, हार्ड रॉक्स। यहाँ पे क्या रहता है, आपका हार्ड रॉक रहता है। ओके, उसके नीचे क्या रहता है, आपका ये मैग्मा रहता है। सो इनके ऊपर भी वो क्या होना जाता है, मैग्मा
आना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप सभी को तो पता है कि कोई भी चीज अगर वेपराइज होती है, मैग्मा क्या है कि लिक्विडेशन फॉर्म है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। मैग्मा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। सो ये जब हल्का हो जाएगा तो हल्का होने के बाद कोई भी चीज क्या होने लगती है, वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है। इज इट? यस Yes, sir. या Yes, sir. यस। So Yes, this sir. magma will Yes, also tries to move in upward direction। ये जो मैग्मा है ये भी ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब ये जो आपका मेंटल लेयर है इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। सो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां पे क्या हो जाता है, आपके इस मेंटल लेयर पे क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। सो उन क्रैक्स में से ये जो मैग्मा रहता है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका अर्थ के इनर लेयर तक आ जाता है। ओके, हियर यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपकी जो अर्थ की रेडियस है दिस वन 6371 किलोमीटर। ओके, यू आर सेइंग दैट इट इज फॉर 6400 किलोमीटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम 6400 किलोमीटर। ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली है, बट द एक्चुअल रेडियस इज व्हाट 6371 किलोमीटर। सो 6071 किलोमीटर से लेके आपका 5100 किलोमीटर तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है लगभग कितना है आपका, यस हाँ इट 12 इज सेकंड सर। 1271 किलोमीटर। इतना जो डिस्टेंस है, दिस इज द किलोमीटर, ना किलोमीटर है, इतना जो डिस्टेंस है यहाँ तक क्या आ जाता है आपका इनर कोर। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये सबसे ज्यादा है। मींस हियर वी हैव द टेम्परेचर अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। सो 5100 से ले तक कहाँ तक, 2900 तक, 2900 तक। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये कितना हो गया आपका 3000, ये 2000। ओके, ये लगभग कितना हो, 2200. 200। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस तक क्या है, आपका आउटर कोर है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका मैग्मा है। इज इट? यस, यस Yes, सर। sir. इस लेयर Yes, तक sir. क्या है, मैग्मा है। Yes, सो sir. उसके Yes, बाद sir. जो है, उसके बाद आपका 2900 से लेके 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक, मतलब ये जो है अप्रोक्सीमेटली 2300 किलोमीटर का लेयर। ओके, यहाँ पे लोअर मेंटल से, मतलब पिघले हुए पत्थर से, स्टीम वेपराइज फॉर्म में ये रहते हैं आपके। सो ये वेपराइज फॉर्म जो है ये ब्रेक करके करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। सो जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, हीट ज्यादा रहेगी, वहां पे रॉक्स को क्या करेगी, वो ब्रेक कर देंगी, क्रैक कर देंगी, और उससे वो क्या करेगी, हीट बाहर आने की कोशिश करेगी। सो वो हीट जो बाहर आती है उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका वाटर का लेयर रहता है, हियर वी हैव द वाटर पॉन्ड्स। ओके, इस वाटर के लेयर को क्या करता है, ये हीट करता है। सो उसकी वजह से जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका प्रेशर बढ़ने लगता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। और जो अर्थ का सरफेस रहता है हमारा, जमीन, जमीन से क्या करते हैं, वो स्टीम बाहर आने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी गॉट द स्टीम फ्रॉम दैट पॉइंट। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, यस, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, सो हियर लेट्स सी, यहाँ से जो आपके हॉट वाटर जो आते हैं वो बाहर आता है, स्टीम बाहर आती है। अभी स्टीम का यूज हम क्या करते हैं, जनरली स्टीम पावर प्लांट में, सॉरी, जियोथर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ओके, जियो क्यों कहा गया है, जमीन है इसलिए, जमीन के नीचे की जो थर्मल एनर्जी है दिस वन, इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, वी आर कन्वर्टिंग द वाटर इनटू स्टीम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जियोथर्मल। आया समझ में जियोथर्मल का मतलब? यस। यस सर। नाउ अभी देखिए कि आपका जो लगभग लगभग दुनिया में 20 ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। ओके, कोई बता सकता है इंडिया में ऐसे हॉट पॉइंट्स कहाँ पे हैं? यस, Yani, या दिस हॉट पॉइंट्स कहाँ पे है, किसी को पता है? लोनार सरोवर। लोनावळा. लोनावड़ा, लोनावड़ा में कहाँ पे है? No. सातपुर सर। हाँ? Deepnagar. द्वीपनगर। सापुतारा। ओके, Deepnagar.
दीपनगर, ओके। सापुतारा। सापुतारा, ओके। राजगीर। सभी को पता महाबलेश्वर। सभी को नहीं, महाबलेश्वर में नहीं है। लेट्स सी, लोनावाला और महाबलेश्वर में आप जो देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट द हॉट पॉइंट्स, हाँ। दैट आर नॉट द हॉट पॉइंट, दीज आर द कोल्ड स्पॉट्स। वो कोल्ड स्पॉट्स है, टूरिज्म पॉइंट्स है वो, वहां पे ऐसा नहीं है। ओके। आपको बद्रीनाथ पता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस, उत्तराखंड में आपने मतलब सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा ना। Yes, sir. हाँ, हाँ सो सर। वहां पे जो ओके, वहां पे जो मंदिर है, सो मंदिर में से जो लोग कहते हैं, मतलब अभी ये हर एक लोगों की धार्मिक श्रद्धा है, उसको मैं हट नहीं करना चाहता। वहां पे उनका कहना ऐसा है कि वहां से जो गर्म पानी आता है, वो भगवान की देन है। बट साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट दैट वाटर कम्स फ्रॉम द जियोथर्मल एनर्जी। दैट वाटर इज कम्स फ्रॉम द जियोथर्मल एनर्जी। वहां पे जो गर्म पानी की कुंड है वहां पे, ओके, सो उन गर्म पानी के कुंड को हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। ओके। सो जनरली अमेरिका एंड आइसलैंड, ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज जियोथर्मल एनर्जी का यूज ज्यादा करते हैं। अमेरिका के कुछ कुछ स्पॉट्स में तो ऐसा है कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उनके घर में लेके जाते हैं, घरों को हीट करने के लिए। डायरेक्टली दे आर ड्रिलिंग इन द earth crust and they are taking the steam from that earth crust and that steam they are using to heat the house. Okay, so now how that geothermal energy we are utilizing to take the electricity. अभी उसका यूज कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। सभी को पता है? यहाँ तक समझ में आया जो थर्मल एनर्जी क्या है, कैसे बनी, उसका यूज कैसे हुआ है? मतलब अभी यूज तो हम अभी देखेंगे, लेकिन वो जो थर्मल एनर्जी कैसे बनी, अब तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो No, लेट्स sir. मूव सर। टुवर्ड्स द सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स। ओके, नाउ अभी जियोथर्मल पावर प्लांट जो है, इसके बेसिकली तीन टाइप्स हैं। पहला जो है, इट इज कॉल्ड एज द फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। ये जो है पहला, दिस वन, फर्स्ट इज द फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिस इज द फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। देन उसके बाद जो है सेकंड वाला, ये है आपका ड्राई स्टीम पावर प्लांट। सेकंड जो है, दिस इज द ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ओके, एंड थर्ड वन जो है, थर्ड वन इज व्हाट यूर बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। थर्ड वन जो है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। पहले हम ड्राई स्टीम पावर प्लांट देखते हैं, मतलब आपको तब आपको फ्लैश स्टीम पावर प्लांट भी समझ में आएगा। फर्स्टली वी विल सी द ड्राई स्टीम पावर प्लांट। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला वी आर स्टडिंग दिस वन, हम ये स्टडी कर रहे हैं अभी। ओके, आप जो डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। यू कैन जूम द डायग्राम, जस्ट जूम इन द डायग्राम, ऑल ऑफ यू जस्ट जूम इन द डायग्राम। डायग्राम को थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ओके, किया जूम? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स सी। देखिए, ये अभी देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन वेल, मतलब जो जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के स्टीम के पॉन्ड्स है, हॉट स्टीम्स के पॉन्ड्स, वहां पे ही ये जियोथर्मल पावर प्लांट हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक जगह पे इसको बिल्कुल इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पे सिर्फ क्या है आपका जियोथर्मल एनर्जी से हॉट स्टीम्स बाहर आते हैं, उसी जगह पे सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह पे इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन वेल जो है, मतलब रॉक लेयर्स। प्रोडक्शन वेल मतलब द रॉक लेयर्स, जहां से हमें क्या आती है, हॉट स्टीम आती है। सो दैट स्टीम डायरेक्टली गेट, ये जो स्टीम है, इस डायरेक्टली स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। वी आर डायरेक्टली स्ट्राइकिंग द स्टीम ऑन द टरबाइन। So when we strike the steam on the turbine, here the expansion of steam will takes place. So due to that, this turbine start to run. ये जो टर्बाइन है, ये रन होना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी का तो आगे आपको पता है। टर्बाइन का शाफ्ट जो है, वो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। टर्बाइन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं, तो शाफ्ट भी रोटेट होगा। ना टर्बाइन का शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट किया है, तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होगा। से जनरेटर से क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, बाद में यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखिए, जो टरबाइन पे हम स्टीम स्ट्राइक कर रहे हैं, टरबाइन पे जो स्टीम हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उस स्टीम का बाद में क्या किया जाता है, सेम उसी स्टीम को हम क्या करते हैं, वापस से जमीन में छोड़ देते हैं। सेम उसी स्टीम को क्या करते हैं, वापस जमीन में छोड़ देते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
Balance the ecosystem, sir. Balance the ecosystem. Okay, then yes. ओके, जो हॉट अभी देखिए वहां पे तो जियोथर्मल प्लांट जो है हमने इंस्टॉल किया है, सो वहां से हमेशा के लिए जियोथर्मल एनर्जी आनी चाहिए ना, इज इट, है या नहीं? Yes. Yes, sir. अगर Yes, पूरी की sir. पूरी जियोथर्मल एनर्जी Yes, हम sir. यूज Yes, ही sir. कर रहे हैं, तो वो बाद कुछ सालों के बाद वो वहां पे आपको दिखाई नहीं देगी, वहां से वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। सो वो कंटिन्यू भी रहना चाहिए ना। सो इसलिए जो कुछ स्टीम है वो स्टीम हम वापस क्या करते हैं, सेम पॉइंट में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, सो दिस इज द ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ये हो गया आपका ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ड्राई स्टीम में क्या करते हैं, डायरेक्टली जो स्टीम जमीन से आती है उस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन पे स्ट्राइक करते हैं। ओके, नाउ सेकंड, लेट्स सी हियर द सेकंड वन इज व्हाट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। मतलब ये हम अभी देख रहे हैं this one. Okay, we are seeing this one, flash steam power plant। ये अभी हम देख रहे हैं। अभी फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में देखिए क्या होता है। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में जो जमीन से पानी आता है उसका टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री के आसपास रहता है। जमीन से जो पानी आता है उसका टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, 180 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ से जो आता है दिस वन, इट इज 180 डिग्री सेल्सियस। यू कैन जूम द स्क्रीन, स्क्रीन को आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट को जूम करके देखिए। ओके, सो यहाँ से जो वाटर आता है उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो उस स्टीम को हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। उस स्टीम को हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। और हमारा जो सादा वाटर रहेगा, कोल्ड वाटर, उस कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, हम इस फ्लैश चेंबर में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैश चेंबर दिखाई देगा। उस सादे वाटर को क्या करते हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वाटर, उस वाटर को क्या करते हैं हम इस फ्लैश चैम्बर में छोड़ देते हैं। सो फ्लैश चैम्बर में हम जब इस वाटर को छोड़ते हैं तो ये जो 180 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसका प्रेशर हमने क्या किया है, बढ़ाया है। तो वो जो वाटर है वो वाटर क्या करता है, इस वाटर को, मतलब जो वो हॉट वाटर है 180 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट वाटर, वो हॉट वाटर क्या करेगा, हमारे डेली की लाइफ करने, डेली में जो हम वाटर यूज करते हैं उसको क्या करेगा, वो हीट करेगा और उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। Okay, flash steam, we are just immersing on the cold water, so that cold water will get converted into the steam, and that steam we are using for to run the turbine। और उस स्टीम का यूज हम क्या करेंगे, टरबाइन को रन करने के लिए यूज करेंगे। ओके, देन बाद में जो यहाँ से आपको मिली है, ओके, यहाँ से जो आपको स्टीम मिली है वो स्टीम, एज वेल एज यहाँ से जो स्टीम आपको मिली है, कौन सी वाटर, जो डेली लाइफ में हम वाटर यूज करते हैं, हॉट करने के बाद वो जो स्टीम रहती है वो स्टीम दोनों को भी हम क्या करते हैं, वापस से जमीन में छोड़ देते हैं ना। अभी देखिएगा, अभी देखिए, अगर अगर हम यहाँ पे जो वाटर ले रहे हैं, जमीन से जो वाटर ले रहे हैं हॉट वाटर, वो हम फ्लैश चैम्बर में तो डाल ही रहे हैं। अगर कुछ वाटर, कुछ स्टीम थोड़ी सी गर्म भी रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग दूसरे चैम्बर में यूज करते हैं। अलग दूसरा फ्लैश चैम्बर रहेगा, उसमें हम यूज करेंगे और वहां पे भी हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ से जो स्टीम बाहर आएगी फ्लैश चैम्बर से, उस स्टीम का यूज क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैश चेम्बर में, उस कोल्ड वाटर को पहले हीट करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे हमने देखा था बॉयलर में इकोनोमाइजर का सेक्शन था, इज इट। आपके जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस ऐसे जाते हैं। ओके, ओके, यू कैन जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ओके, ये देखिए ये क्या है आपके फ्लू गैसेस इन स्टीम पावर प्लांट। आई एम जस्ट टेलिंग इन द स्टीम पावर प्लांट, फ्लू गैसेस, कोल को बंद करने के बाद आपको ये फ्लू गैसेस मिलेंगे। सो ये जो फ्लू गैसेस है, मान लीजिएगा इन फ्लू गैसेस का टेम्परेचर जहां पे वो बर्न किया गया, वहां पे आपको टेम्परेचर कितना मिला, 2000 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिएगा टेम्परेचर कितना मिला, 2000 डिग्री सेल्सियस। नाउ बॉयलर ड्रम, बॉयलर ड्रम जो रहता है, ओके, दिस इज द बॉयलर, मान लीजिएगा दिस इज द बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में इसका टेम्परेचर लगभग मानिए कितना रहेगा, मान लीजिएगा एक 1200 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे इकोनोमाइजर सेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपका इकोनोमाइजर सेक्शन रहेगा। सो यहाँ पे मान लीजिएगा आपका फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके,
ये आंकड़े जो है मैं इससे लिख रहा हूँ, एक्चुअली इतना नहीं है, लेकिन जैसे आपको समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका इकोनोमाइजर। सो जो वाटर आता है वो वाटर पहले कहाँ पे आता है, आपका इकोनोमाइजर सेक्शन में आएगा। ओके, वाटर वाटर कहाँ पे आता है, कोल्ड वाटर। ओके, जो फीड पंप से हम वाटर देते हैं कोल्ड वाटर, वो पहले क्या होता है, इकोनोमाइजर सेक्शन में आता है। सो इकोनोमाइजर सेक्शन में टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस। नाउ मान लीजिएगा कि जो कोल्ड वाटर हम छोड़ रहे हैं उसका टेम्परेचर लगभग कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। जो कोल्ड वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मान लीजिएगा कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। सो ये 28 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है यहाँ से हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा इकोनोमाइजर फ्लू गैसेस से। नाउ दैट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लेट मान लीजिएगा 50 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट? यस। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now this 50 degree Celsius water where we are transferring to what, boiler drum. Now boiler drum का टेम्परेचर कितना है, 1200 डिग्री सेल्सियस है। सो मान लीजिएगा कि यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर का कन्वर्जन आपका कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में हो गया। अभी मान लीजिएगा इसका कन्वर्जन कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में हो गया ना। उसके बाद आपका जो फर्नेस है उसी के पास आपका क्या रहता है, सुपर हीटर। यहाँ पे ही क्या रहेगा, आपका सुपर हीटर रहेगा। इज इट? यस। सो अभी ये जो स्टीम है ये स्टीम सुपर हीटर में जाएगी और पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सुपर हीट हो जाएगी, क्योंकि अभी उसको टेम्परेचर कितना मिल रहा है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है। इज इट? यस। Yes, sir. अभी उस टीम को टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिल रहा है ना। सो दैट इज द सेम फंडा वी आर यूजिंग हियर। यहाँ पे भी हम सेम वही कर रहे हैं, ड्राई सॉरी फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में। जस्ट जूम इन टू द फ्लैश स्टीम पावर प्लांट टेम्परेचर पावर प्लांट डायग्राम। ओके, जूम इन टू दिस फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो स्टीम आ रही है उससे हम क्या कर रहे हैं, फ्लैश चैम्बर में कोल्ड वाटर को हीट तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्टीम यहाँ से बाहर जाएगी उस स्टीम का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस कोल्ड वाटर को हीट करने के लिए। सो इजीली दैट वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम इन द फ्लैश चैम्बर। ओके, सो उसके बाद उस स्टीम को हम क्या करते हैं, जमीन में छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो स्टीम यहाँ पे बचेगी सेकंड कंस्ट्रक्शन में वो हम क्या करते हैं, जमीन में छोड़ देते हैं। सो हियर वी आर यूटिलाइजिंग द टोटल heat power of the steam coming from the ponds. Okay, so this is the flash steam power plant. समझ में आया अभी को? Yes. Yes, sir. Okay. Now last one is what, binary cycle power plant. Last one क्या है आपका, binary cycle power plant. Now just zoom into the binary cycle power plant. Binary cycle power plant तक क्या कीजिए, zoom कीजिए अभी उस cycle मतलब वो diagram को। Now देखिए the same construction here. I think same construction is here. We are taking the hot water. Okay. Now ये जो hot water है, ये hot water हम क्या कर रहे हैं, this hot water coming from the ponds. So this hot water, okay, I will change the pen color. ब्लू कलर का यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ब्लू कलर में, लेट्स सी, दिस इज द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे क्या है आपका, हीट एक्सचेंजर है। ओके, सो ये जो हॉट वाटर है जमीन से आने वाला, इसको हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में पास करते हैं। सो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि हम जो डेली का वाटर यूज कर रहे हैं, डेली का वाटर जो यूज कर रहे हैं, उस वाटर को हीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। जो हॉट वाटर पॉन्ड से आता है उस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हमारा वाटर हीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो जो हीट हुआ वाटर है उसका कन्वर्जन स्टीम में हो जाएगा। देन वो स्टीम क्या हो जाएगी, आपके टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक हो जाएगी। देन बाद में उसी स्टीम को मैं क्या करूंगा, नीचे भेजूंगा। नाउ अगेन दैट स्टीम आई एम यूजिंग फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस अगेन दैट स्टीम आई एम यूजिंग टू रन द टरबाइन। मतलब यहाँ पे मैं कंडेंसर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इज इट? यहाँ पे किसी ने देखा क्या अभी तक कंडेंसर? No, sir. No, sir. No, sir. No, Okay, sir. so in steam power plant we are using the condenser. In again for nuclear power plant we are using condensers. ओके, सो बाकी के जो पावर प्लांट थे उसमें हम क्या करते थे, कंडेंसर्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कंडेंसर का यूज हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? यस, कैन यू टेल मी? यस, कंडेंसर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यस, जनरेटर यूज किया है ना। जनरेटर का और कंडेंसर का क्या यूज, क्या मतलब है, उनका तो कुछ रिलेशन नहीं ना।
जनरेटर तो हम स्टीम पावर प्लांट में भी यूज कर रहे हैं ना। आज सर हमें आज जो पहले इनिशियल में पावर की कोई गरज ही नहीं ना। लेट्स सी हियर इन दिस पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट, हम क्या कर रहे हैं, जमीन से जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है उसका यूज हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे नॉर्मल वाटर को हीट करने के लिए कर रहे हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे एनर्जी ज्यादा ही मिले। सो अगर आप वाटर को कंडेंस करोगे, फिर वापस से क्या करोगे, आपके जो जियोथर्मल्स मतलब जो जमीन से आने वाले वाटर है उसके साथ उसको मिक्स करोगे तो फिर से उसको एनर्जी ज्यादा लगेगा ना स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टीम टरबाइन से बाहर आ रही है, सेम उसी स्टीम को मैं आगे पास कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई हियर आई एम नॉट यूजिंग द कंडेंसर। इफ आई यूज द कंडेंसर देन एफिशिएंसी गोज डाउन। कंडेंसर यूज करूंगा तो टेम्परेचर आपकी स्टीम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर कम होने के बाद फिर उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जमीन से ज्यादा गर्म पानी लेना पड़ेगा। ओके, सो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। So that's why here I am using this binary cycle power plant and I am not using the condenser. Now ये binary cycle power plant जो है ये सबसे efficient है। क्यों? क्योंकि जमीन से जो स्टीम हमें मिल रही है सेम उसी को हम वापस भी भेज रहे हैं, और दूसरी बात जो वाटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टरबाइन को रन करने के लिए, वही वाटर बार बार क्या हो रहा है, साइकिल हो रहा है। वही वाटर बार बार साइकिल हो, क्योंकि इट इज द क्लोज, ये क्या है, क्लोज साइकिल है, क्लोज लूप। सो हियर वी डोंट रिक्वायर द मच वाटर, यहाँ पे हमें ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टेज ऑफ वाटर इज वेरी लेस इन दिस वन। ओके, सो दिस इज द जियोथर्मल पावर प्लांट। वी हैव दिस थ्री टाइप ऑफ पावर प्लांट। वन, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, यहाँ पे हम फ्लैश चेंबर का यूज करते हैं। देन सेकंड, ड्राई स्टीम पावर प्लांट, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो स्टीम आती है आपके जियोथर्मल प्लांट से, जमीन से, उस स्टीम को डायरेक्टली यूज करते हैं टरबाइन को रन करने के लिए। एंड बाइनरी साइकिल में क्या करते हैं, जो जमीन से गर्म पानी आता है उसका यूज करते हैं हमारे सादे वाटर को गर्म करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और वो स्टीम हम टरबाइन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आया समझ में आपको तीनों के तीनों? यस। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now advantages. Okay, advantages and disadvantages of this geothermal power plant. First advantage is what, it is less costly. इसका cost सबसे कम है. Then it is a renewable energy source है. Then extraction is environmental friendly. मतलब यहाँ फ्यूल जो हम ले रहे हैं उससे कोई पोल्यूशन वगैरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. ओके, मतलब एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहे हैं. नाउ डिसएडवांटेज देखिए, इट्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. लेस फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? यस, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े तो सडन मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर नहीं सकते। और दूसरी बात तो ये है कि जहाँ पे आपको हॉट वाटर के पॉइंट्स मिलते हैं वहीं पर ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इज इट? इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी का आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, एक जगह से आपने घर छोड़ दिया, एक घर से लेके दूसरे घर तक उसको छत के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो सोलर एनर्जी को, लेकिन इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देन अवेलेबल इन साइज ऑफ व्हाट, 10 मेगावाट ओनली, नॉट लार्जर देन दिस, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते एक पावर प्लांट में। ओके, सो दिस इज द लिमिटेड यूज। ओके, देन एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन। ओके, पावर जनरेशन का तो इसका यूज यही। देन ड्राइंग ऑफ वुड, देन नेचुरल फाइबर्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कॉफीज एंड टीज एक्सेट्रा, सबको ड्राई करने के लिए। देन स्पेस हीटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। देन बाथिंग एंड स्विमिंग, मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि ये जो है अमेरिका वगैरह, आइसलैंड और अमेरिका, ऐसे जो देश है वहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हॉट स्टीम जो है, मतलब हॉट पॉन्ड्स वहां पे ओपनली दिखाई देते हैं आपको। सो दे कैन डायरेक्टली यूज फॉर बाथिंग एंड स्टीमिंग ऑफ दैट, स्विमिंग ऑफ दैट वाटर। Then for industrial applications we can use. Okay, so this is the application, advantages and disadvantages of geothermal power plant. Okay, now this total power plant is clear to you? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. Yes, sir. yes, किसी को कोई डाउट इसमें? सर। No, sir. सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से पावर प्लांट में जनरेट होती है सर? सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होती है, और उससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि आप जब 4,000 टन कोल बर्न करते हो, उससे जो एनर्जी मिलती है उतनी सेम एनर्जी आपको कहाँ पे मिलती है, सिर्फ 1 किलो न्यूक्लियर रिएक्शन करने से मिलती है, 1 किलो फ्यूल यूज करने से।
So maximum amount of energy we can generate by using the nuclear power plant. Okay. And- अगर आप एंड सर इन अ, आज जियोथर्मल पावर प्लांट में जो 3 प्लांट है सर, हम्म। उसमें सबसे ज्यादा कौन से प्लांट में ओके होती है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इज बाइनरी की लास्ट वन, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट. ओके सर. Okay, anything else? Okay, shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. यस सर. Okay, now next is the wind power plant. अभी आप सबने तो ये देखा होगा. Okay. इसमें इतना एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन लेट्स सी दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो आई विल एक्सप्लेन दिस वन. नाउ लेट्स सी द वाइंड पावर प्लांट. एक्चुअली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पहले हम देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि वाइंड कैसे जनरेट होती है, हाउ द वाइंड इज प्रोड्यूस्ड. सर वाइंड Motion of तो earth. जनरेट Sir, वो तो हमेशा घूमती ही रहती है सर. Yeah, but what is the basic principle behind the wind transformation? sir, cold and hot सर टाइड sir, इन द regions ओशन. की वजह से किसी हम्म? सर Tides in किसी the ocean. अगर एरिया में लो प्रेशर जनरेट होता है तो वहां पे हाई प्रेशर देने के लिए विंड आती है. बिल्कुल. ओके, नाइस. जनरली कैसा होता है कि आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स है, पहले तो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी सबसे कम रहती है. इज इट? यस सर. यस, yes sir. उनकी डेंसिटी सबसे कम रहती है. सबसे कम रहती है, डेंसिटी कम है, हम कैसे बोल सकते हैं? यस, कैन एनीवन टेल मी? मास टेल मी. मैं आपको एक एग्जांपल नेग्लिजिबल बताता होता है सर उसका. हूँ. ओके, सो मतलब मैं क्या, अभी देखिए, आप मुझे एक बताइए, एक वाटर है मेरे पास और ऑयल है. वाटर और ऑयल दोनों है. सो इन दोनों में से डेंसिटी कम किसकी है? ऑयल की सर. ऑयल की. ओके. कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, सो इन दोनों में से डेंसिटी किसकी कम है? Hot water. हॉट वाटर. हॉट वाटर की. हॉट वाटर. ओके. आपने ये कैसे बताया कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन? Gap between two atoms. Gap between two atoms. Okay. But practically, how you can prove this one? By mass आपके or पास volume. मास वॉल्यूम. ओके, ठीक है. हाँ, आपके वॉल्यूम पास से सर. ओके, आपके पास लकड़ी है, लकड़ी और पानी. सो दोनों में से डेंसिटी किसकी कम है? This लकड़ी की dense सर. object floats on a high dense Wood की. object. लकड़ी की. यस. सो या ओके, किसी ने मुझे बताया बात यहाँ पे. यस, किसी ने मुझे बताया. The less dense object floats on a high dense object. no? या बिल्कुल. यस. देखिए कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है वो हमेशा क्या होता है, हाई डेंसिटी वाले फ्लूइड पे क्या होता है, फ्लोट होता रहता है. अभी पहले मैंने आपको बताया, पूछा, वाटर और ऑयल अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो पानी के ऊपर जो ऑयल है वो ऑयल तैरता है, तो इसका मतलब ऑयल की डेंसिटी कम है. उसके बाद मैंने आपको पूछा हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर. अगर आप कभी कभी अगर आपने देखा होगा आपके स्कूल या कॉलेजेस में वाटर कूलर्स रहते हैं. ओके. अगर वाटर कूलर में अगर आपने कभी देखा होगा तो जब आप टैप से पानी लेते हो तो वो पानी ठंडा रहता है, लेकिन अगर उसी वाटर कूलर में अगर आप ऊपर से हाथ डालते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि ऊपर जो है, ऊपर पानी आपको थोड़ा सा गर्म दिखाई देता है. इज इट? यस. Yes, sir. यस सर. यस, इट मींस द हॉट वाटर हैज द लेस डेंसिटी एज द कोल्ड वाटर. लकड़ी भी आपने देखी, लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर तैरती है. सो लकड़ी की डेंसिटी क्या रहती है आपकी, कम रहती है एज कम्पेयर टू द वाटर. सो डेंसिटी, अभी एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो क्या रहती है, सबसे कम रहती है. अभी दूसरी बात ये, अभी एक लोगों ने मुझे बताया है पे कि अगर किसी रीजन में कम प्रेशर क्रिएट हुआ, किसी रीजन में प्रेशर कम क्रिएट हुआ, मतलब एक आप किसी जगह पे
प्रेशर अगर कम क्रिएट होता है तो क्या होता है कि लिक्विड हैज द वन प्रॉपर्टी, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इज इट? यस सर। लिक्विड की Yes, प्रॉपर्टी sir. है ना, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके लिए मैं आपको दूसरा भी एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास पानी है घर में, ओके, अभी देखिएगा पानी, लेट्स सपोज आपने क्या किया, एक इंक्लाइन सरफेस कर लिया, आपने क्या किया, एक इंक्लाइन सरफेस कर लिया। अभी उस इंक्लाइन सरफेस में देखिए, जब आप ऊपर से पानी छोड़ते हो उस इंक्लाइन सरफेस पे तो पानी ऊपर से नीचे आता है, इज इट? बट अगर उसका उल्टा अगर मैंने किया, नीचे पानी छोड़ा तो पानी ऊपर जाता है क्या इंक्लाइन सरफेस पे? No, sir. नो। Yes. Okay, it means water always flows from what? High elevation to low elevation. Is it? It means any fluid or any object flows from its high potential to low potential. That potential is either in terms of electricity, either in terms of elevation, either in terms of pressure. Is it? So high pressure जहाँ पे रहेगा, high pressure से क्या होता है, fluid low pressure region में जाता है। So वहाँ पे क्या होती है, wind energy generate होती है। Is it? आया समझ में अभी सभी को? यस सर। यस। सो यहाँ पे देखिए वाइंड पावर प्लांट में क्या होता है कि जो हाई वेलोसिटी, या आउट इसको, ओके चलो देखिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, दिस इज द मैकेनिज्म टू यूटिलाइज द एयर, हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी एयर टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम दिस वन। ये आपने देखा होगा, ओके। याला मराठीमध्ये आपण पवन चक्की म्हणतो और इन इंग्लिश इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइंड मिल्स, इसको हम वाइंड मिल्स बोलते हैं। आई थिंक नाउ दिस इज ऑल दिस थिंग्स यू हैड सीन, आप सबने ये देखा होगा, ओके। ना अभी देखिए कि एक्चुअली इसका वर्किंग कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने इस वाइंड मिल का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा तो देखिए ये ब्लेड्स रहेंगे, दीज आर द ब्लेड्स, इट हैज 3 ब्लेड्स, इसको 3 ब्लेड्स रहते हैं, इज इट? 3 ही रहते हैं ना या ज्यादा रहते हैं? नो सर, 3 ही रहते हैं। सर 3 ही रहते। ओके, इसको 3 ही ब्लेड्स रहते हैं, ओके। नाउ दिस ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट, ये जो ब्लेड्स रहते हैं ये मेन शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। Now, this main shaft is get connected to gearbox. यहाँ पे आपका है gearbox. Now, gearbox का ये आपका क्या रहेगा, आउटपुट शाफ्ट रहेगा, इसके ऊपर ये ब्रेक्स रहेंगे। Then, ये जो gearbox का शाफ्ट रहता है वो किससे कनेक्ट किया जाता है, जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। I'm connecting this shaft of gearbox to the shaft of generator. Now, बाकी का तो आपको पता ही है, ओके। सो ब्लेड्स जब रोटेट होंगे, ब्लेड्स रोटेट होने के बाद क्या होगा, मेन शाफ्ट जो है वो मेन शाफ्ट रोटेट होगा, उसके बाद हम गियर बॉक्स में वो शाफ्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ गियर बॉक्स का यूज क्या रहता है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी द यूज ऑफ गियर बॉक्स? स्टार्ट द ब्लेड्स सर। छोटे रोटेशन को बड़ा रोटेशन। To increase the speed. ओके Increase the speed of Yeah. rotation. ओके, gearbox we are generally using, gearbox we are generally using to increase स्पीड the बढ़ाने के speed or decrease the speed as well to increase the torque or decrease the torque, is it? स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम गियर बॉक्स यूज करते हैं, या फिर टॉर्क बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी स्पीड का तो सभी को पता ही है, स्पीड सभी को मालूम है, बट व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क क्या है? Force acting on a point. फोर्स एक्टिंग ऑन Yes. फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। पॉइंट, Point. checked, no, no, एंगुलर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। that is a mathematical formula. I am asking about the concept. That is whatever you are told, that is correct, but I am asking about the concept. टॉर्क क्या है? Force acting on a point. Particular point. Force that tends to cause a rotation. Force required. Yeah, Force yes. applied to rotate. Force
tends to the rotation of object. इसका मतलब टॉर्क हम सिर्फ सर्कुलर सेक्शन पे ही यूज कर सकते हैं. इज इट? Yes, sir. इज इट? फोर्स जो है हम सिर्फ सर्कुलर सेक्शंस पे ही यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम फोर्स जो है अगर किसी दूसरी चीज पे यूज करते हैं तो उसको टॉर्क बिल्कुल भी नहीं बोलते. उसका एक सीधा एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ. एक सीधा एग्जांपल आपको बोलता हूँ. अगर देखिए मेरे पास क्या है, ये एक व्हील है. मेरे पास क्या है, ये व्हील है. लेट्स सी दिस इज द रोड. ये क्या है, रोड है. ओके नाउ अगर मैं इस व्हील को, ये व्हील का सेंटर है, इस व्हील का सेंटर है, इस सेंटर पे फोर्स अप्लाई करूं, इस सेंटर पे फोर्स अप्लाई करूं तो व्हील रोटेट होगा क्या? No. तो No, sir. नो सर. No, sir. रोटेट होगा क्या? नहीं होगा. ओके अगर सेंटर पे अप्लाई करूं तो क्या होगा, व्हील का क्या होगा? अगर सेंटर पे अप्लाई करूं तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. Will Why? displace. No, not यस rotate. इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इसका क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आगे जाएगा. ओके बट अगर मैं इसको, लेट्स सी हियर आई विल चेंज द पेन कलर. लेकिन अगर मैं इस व्हील के ऊपर यहाँ पे फोर्स दे दूं सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करूं तो ये व्हील रोटेट होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस. अगर इस ओके अगर इस डायरेक्शन में इसको फोर्स दे दूं तो ये रोटेट होगा. इज इट? यस Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this force, yes. So this tangential force will cause to rotate the wheel. So that's why this force is called as the torque. Actually, the formula of torque is what? Tangential force Shell for applied multiplied by what? Yes, radius. yes. This Radius. is the radius of the wheel. Is it? अभी आप मुझे एक बात बताइएगा. ओके अभी एक बात बताइएगा कि अगर मैं रेडियस इंक्रीज करूं तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज हाँ होगा. डिक्रीज Decrease. होगा सर. Decrease होगा. हाँ Decrease. डिक्रीज होगा सर. जस्ट टेल मी द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? डायरेक्टली Directly. Directly proportional. Directly. Inversely proportional, sir. Directly proportional. डिपेंड करेगा टेंजेंशियल फोर्स कैसा है. अगर वो कांस्टेंट होगा तो वो इंक्रीज होगा. अगर टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर वो डिपेंड करेगा. नो हियर लेट्स सी. अगर आप इंजीनियरिंग में एक बात समझ लीजिएगा. अगर 3 पैरामीटर्स रहते हैं ना, अगर किसी भी फॉर्मूलाज में 3 पैरामीटर रहते हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर है मेरे पास. एक क्या है, टॉर्क, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स और तीसरा रेडियस. इज इट? हमेशा yes. नोट कीजिए ये. यस इंजीनियरिंग में नोट कीजिएगा. अगर 3 पैरामीटर मेरे पास रहते हैं, इफ आई एम आस्किंग अबाउट द एनी पैरामीटर बाय चेंजिंग द another parameter, I am asking the one parameter by changing the another parameter, then the third parameter is automatically get constant. थर्ड पैरामीटर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ऐसा हम assumption की करते हैं. ओके सो whatever आंसर यू हैव गिवन दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट है. अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूं तो टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर भी डिपेंड है टॉर्क बढ़ता है या कम होता है. बट अगर मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर मैंने रेडियस बढ़ाया तो टॉर्क बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसका क्या है, सो उस चीज में टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट है मेरा. सो उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि रेडियस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है. सो रेडियस बढ़ाने के बाद टॉर्क बढ़ता है या नहीं बढ़ता है. नाउ टेल मी. यस अगर मैंने रेडियस बढ़ाया तो टॉर्क बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर. बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. बढ़ेगा सर. So- बढ़ेगा. So torque is directly proportional to radius, is it? Yes, sir. Yes.
यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप जब व्हीकल यूज करते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो, आप पहले क्या करते हैं? फर्स्ट गियर डालते हैं। आप क्या करते हैं? फर्स्ट गियर डालते हैं। फर्स्ट गियर डालते हैं मतलब क्या करते हैं? यस, किसको पता है? उसको न्यूट्रल कर एक्सेलरेशन, नहीं, न्यूट्रल का एक्सेलरेशन मतलब क्या है? एक्सेलरेट करते हैं। नहीं, ठीक है, मुझे Decrease पहले the न्यूट्रल speed का and मतलब बताओ। increase the torque. ओके, बट जस्ट कम टू इनिशियल द टॉर्क फर्स्ट पॉइंट। प्रोवाइड करते हैं मुझे उसको। पहले मुझे न्यूट्रल का मतलब बताइए। गाड़ी न्यूट्रल पे, इसका मतलब क्या है? वो एक जगह पर खड़ी है At सर। rest, no movement. At rest, no रेस्ट movement. या गियर इट नहीं इज डालना। एट रेस्ट। यस, एट रेस्ट इट देयर इज एनी नो मूवमेंट। अभी देखिए, गाड़ी न्यूट्रल पे है, ऐसा हम कब बोलते हैं? अगर गाड़ी जगह से हिल ही नहीं रही है, उसको पावर ही ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, सो देयर इज नो एनी एंगेजमेंट बिटवीन द गियर्स। बट अभी अगर मैंने फर्स्ट गियर डाला, तो फर्स्ट गियर डालने के बाद क्या होता है? यस, हाँ, पावर जनरेट होती है सर। गाड़ी Acceleration with मोशन में certain speed. ओके। जैसे मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालता हूँ, तो गाड़ी क्या होती है? स्टार्ट होना शुरू कर देती है। स्टार्ट। तो मुझे बताइएगा, यस, फर्स्ट गियर में गाड़ी का स्पीड ज्यादा रहता है या कम रहता है? कम रहता है। कम रहता है। गाड़ी का स्पीड कम रहता है। देन सेकंड गियर में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज बढ़ता होता है। है और फर्स्ट पावर गियर पावर से भी ज्यादा रहता है। पावर भी बढ़ती है। स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थर्ड में और उससे ज्यादा थर्ड गियर ज्यादा में रहता उससे भी ज्यादा। स्पीड बढ़ता है। स्पीड क्या होता है? बढ़ता लेट्स है। सी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्पीड बढ़ रहा है। थर्ड में भी क्या हो रहा है? स्पीड लेट सपोज थर्ड टाइम बढ़ रहा है, ऐसे मैं बोलता हूँ। ओके, एंड फोर्थ गियर में सबसे ज्यादा है। स्पीड, मैक्सिमम Right. स्पीड। स्पीड मैक्सिमम क्या होता स्पीड है? और आप मैक्सिमम स्पीड में जाता है। नाउ दिस इज व्हाट अबाउट द स्पीड। अभी ये तो आपको स्पीड का तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट द टॉर्क इन फर्स्ट गियर? व्हाट इज द टॉर्क? हाई टॉर्क। टॉर्क कम रहता है या ज्यादा रहता है? Maximum torque. ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क सर। टॉर्क जो रहता है वो क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। सेकंड में टॉर्क कम होता है, डिक्रीज। मेरे से कम हाँ होता है। सर। लेट्स इट्स डिक्रीज बाय वन स्टेप। इन थर्ड हाँ, डिक्रीज हो जाता है और सर। कम होता है. टॉर्क और कम रहेगा। और फोर्थ में निग्लिजिबल। हाँ, टॉर्क नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल नहीं, टॉर्क। इट इज नॉट नेग्लिजिबल, मिनिमम। इज इट? मिनिमम। यस। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको टॉर्क का यूज क्या होता है। Yes, sir. टॉर्क यूज करते हैं पहले, सबसे पहले तो हमारी गाड़ी जो है वो क्या रहती है? रेस्ट में रहती है। इज इट? सबसे पहले हमारी गाड़ी यस यस सर। रेस्ट में रहती है, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमारे पास जो व्हील रहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा फोर्स देने की जरूरत पड़ती है। अभी व्हील की रेडियस तो मैं चेंज नहीं कर सकता। इज इट? यस यस सर। हाँ सर। लेकिन व्हील का अप्लाइड फोर्स तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ ना। यस सर। यस, Yes, sir. तो हियर या सो व्हील का फोर्स में क्या कर सकता हूँ? बढ़ा सकता हूँ। फोर्स कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं? हाँ, टॉर्क जब इंक्रीज द बढ़ेगा। टॉर्क एंड डिक्रीज द स्पीड। बाय यूजिंग द गियर्स। बाय यूजिंग द गियर्स। जब हम गियर्स गियर। यूज करते हैं, एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। सो इसकी ये गियर की रेडियस कम है। यहाँ पे जो मैंने दूसरा देखा, इस गियर की रेडियस कम है। अगर रेडियस कम है, तो इसका टॉर्क क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसका ज्यादा रहेगा। हाँ, टॉर्क भी टॉर्क भी कम कम रहेगा। रहेगा। कम टॉर्क रहेगा। इसका कम कम रहेगा। रहेगा। कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम कम रहेगा। रहेगा। ज्यादा रहेगा टॉर्क इसका ज्यादा रहता है। यस, ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स में एक्ट कर रहा हूँ ना, वो फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या होता है? ज्यादा रहता है। सो फर्स्ट गियर में क्या रहता है? आपका टॉर्क सबसे ज्यादा रहता है। सो जैसे जब आप गियर शिफ्ट करते हो, वैसे वैसे टॉर्क कम हो जाता है। टॉर्क कम क्यों होता जाता है? क्योंकि अगर गाड़ी आपकी पहले रेस में है, तो उसको मोशन में लाने के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है? टॉर्क देना पड़ता है, सबसे ज्यादा पावर देनी पड़ती है। जैसे ही वो मोशन में आ जाए,
तो आपको धीरे धीरे अगर पावर कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मोशन में ही चलती रहेगी. इज इट? Yes, sir. यस. Yes, sir. Yes, sir. सो दैट इज द गियर बॉक्स का फंक्शन सेम यही है. द शाफ्ट, गियर बॉक्स से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज किया जाता है. मान लीजिएगा आपके जो ब्लेड से, इस ब्लेड क्या होता है 60 आरपीएम से रोटेट होता है. मान लीजिएगा कि जो ब्लेड है वो ब्लेड कितने आरपीएम से रोटेट होता है, 60 आरपीएम से रोटेट 60 होता है. RPM. सो जो शाफ्ट है, ओके, सो शाफ्ट जो है, शाफ्ट ब्लेड का शाफ्ट वो भी 60 आरपीएम से ही रोटेट होगा ना. इज इट? Yes, Yes, sir. sir. तो जब मैं 60 आरपीएम का शाफ्ट गियर बॉक्स से कनेक्ट करूंगा, सो गियर बॉक्स व्हाट इज द, इट इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाएगा. इज इट? Yes. यस. तो गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है, मान लीजिएगा उसके आउटपुट में कितने आ गए आपके 600 आरपीएम. इसके आउटपुट में कितने आरपीएम हो गए शाफ्ट के? 600 RPM. 600 RPM. रिवॉल्यूशन पर मिनट. मतलब एक शाफ्ट, पहले में क्या था, जो शाफ्ट था वो शाफ्ट क्या करता था, 1 मिनट में सिर्फ 60 बार रोटेशन करता था पहले. और गियर बॉक्स का यूज करने के बाद अभी क्या करेगा वो, 1 मिनट में 600 बार रोटेट होगा. दैट इज कॉल्ड एज Yes. आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट. 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन? 600. सो ये जो 600 रिवॉल्यूशंस है वो मैं क्या करता हूँ, जनरेटर को देता हूँ. सो जनरेटर विल प्रोड्यूस द मोर इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं 60 देता, 60 आरपीएम देता जनरेटर को, तो जनरेटर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता क्या? नहीं. No, sir. नो. सो मैं 600 आरपीएम दे रहा हूँ जनरेटर को, इसलिए जनरेटर क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाइंड टरबाइन पावर प्लांट. आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, लेट्स सी हियर आई एम मेकिंग इट डार्क बाय ग्रीन कलर. ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना डार्क ग्रीन कलर में, ये इसको, इस बॉक्स में ये सब सेटअप रहता है. जो बॉक्स है ना, इसमें ये सब सेटअप रहता है आपका, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन लाइंस एंड जनरेटर. ओके, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, yes, advantages sir. of this wind power plant is it is clean and environmental friendly fuel source, renewable energy source, cost effective है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. इट्स क्रिएट द मोर जॉब्स. ओके, आपको पता है सबसे ज्यादा वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी है? यस. Suzlon. यस, सुजलॉन. ओके, सुजलॉन जो है वो सबसे ज्यादा वाइंड पावर क्या करती है, इंस्टॉल करती है. वाइंड पावर प्लांट जो है ये कंपनी सबसे ज्यादा इसको इंस्टॉल करती है, सुजलॉन. ओके. ओके, आपको पता होना चाहिए इसलिए सिर्फ मैंने आपको बताया, अदरवाइज इसमें इसका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. अब इसके डिसएडवांटेजेस देखिए. पहला तो डिसएडवांटेज है कि इसका फ्लक्चुएशन ऑफ वाइंड स्पीड. इज इट? Yes, sir. फ्लक्चुएशन जो है Yes, वाइंड स्पीड का, ये तो सबसे ज्यादा Yes. डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, नॉइज एंड एस्थेटिक पोल्यूशन. इससे नॉइज पोल्यूशन होता है. आप मतलब इस पावर प्लांट से दूर रहते हो इसलिए आपको इसका आवाज इतना सुनाई नहीं देता, लेकिन आप जब उसके पास जाओगे ना तो आपको इसका आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि ये चलती हवा को ब्रेक करता है ना, चलती हवा को ब्रेक करता है, इसलिए क्या होता है, इसका नॉइज पोल्यूशन ज्यादा रहता है. देन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ लैंड. जहाँ जिस पे हम ये इंस्टॉल करते हैं वहां पे जो लैंड है वो लैंड हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते बाद में. ओके, किसी भी चीज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते. Then it threat to the wildlife. Threat to the wildlife means what? Yes. Can anybody elaborate this statement? Threat to the wildlife. इलेक्ट्रिक Sir, करंट it can harm वहाँ पे flying birds. वोल्टेज Hmm? वगैरह, वोल्टेज ड्यू टू वोल्टेज डेंजर. नहीं नहीं. Sir, The flying noise pollution. flying birds के लिए हाँ, Flying birds get what? killed because of that rotator blade. या यस. जो ये ब्लेड्स रहते हैं, ब्लेड्स क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं. सो देयर इज अ चांसेस टू गेट स्ट्राइकिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन दैट रोटेटिंग ब्लेड्स, एंड ड्यू टू दैट इट कॉज द इंजुरी टू दैट बर्ड्स. ओके, आया समझ में? Yes. यस. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so this is the construction and working of wind power plant. So I think this is clear to you.
So today we had covered geothermal power plant and wind turbine power plant. Yes, सभी को समझ में आया? Yes, Yes. sir. Sir, Yes, sir. Yeah, Yes, yeah. excuse me, sir. Yes, ask. Yes, yes, ask me. सर Yes. हम यहाँ पर जैसे गियर बॉक्सेस यूज करते हैं, वैसे ही दूसरी जगह क्यों नहीं करते? कहाँ पे? उससे काफी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर, बाकी पावर प्लांट्स में। बाकी पावर प्लांट्स में बाकी पावर प्लांट लेट्स सी जहाँ ओके लेट्स सी यहाँ पे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जो आरपीएम रहते हैं आपके आरपीएम कहाँ के रहते हैं, जो शाफ्ट से आने वाले आरपीएम रहते हैं मेन फ्लूइड के उसके। अगर आपने बाकी के टरबाइन देखे तो वहां पे जो आरपीएम रहता है आपके टरबाइन्स के शाफ्ट्स का वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपके आरपीएम भी ज्यादा रहे ना तो भी आपकी सिस्टम फॉल हो सकती है। सो लिमिटेड आरपीएम आपको क्या करने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं या फिर सप्लाई करने पड़ते हैं। आप अपने मन चाहे आरपीएम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ओके सो इसलिए हम बाकी के जगहों पे भी क्या नहीं कर सकते, हाई स्पीड टरबाइंस का यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आरपीएम कम रहेगा बाकी के पावर प्लांट में भी अगर आरपीएम कम रहेगा ना तो वो आरपीएम बढ़ाने के लिए हम वहां पे यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। बट ऑलरेडी आरपीएम हाई है तो हम बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। ओके सर, अभी थर्मल पावर प्लांट्स में हम ज्यादा कोल चलाएंगे तो ज्यादा वाटर वेपर मिलेंगे और उस वाटर वेपर को हम टरबाइन रोटेट करने के लिए यूज करेंगे। अगर हम कम कोल यूज करके हम ज्यादा आरपीएम बढ़ा सके तो एफिशिएंट होगा ना? ओके लेट्स सी हम थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम वाटर का कन्वर्जन क्या करते हैं, स्टीम में करते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि उस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम करते हैं। अभी सुपर हीट क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम वेट स्टीम का यूज टरबाइन को रन करने में लगाएंगे, वेट स्टीम का यूज हम टरबाइन को रन करने में लगाएंगे तो वो जो टरबाइन के ब्लेड्स है वो क्या हो जाएंगे, जल्द से जल्द करोड़ हो जाएंगे, उसके ऊपर जल्द से जल्द जंग लगना शुरू हो जाएगा। इज इट? सो उसकी वजह से हम स्टीम को क्या करते हैं, सुपर हीट करते हैं। और उसको सुपर हीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। और ज्यादा हीट एनर्जी देने के लिए हमें कोल ज्यादा डालना पड़ता है। यस, अगर नाउ इट इज क्लियर। पानी कम यूज करके हम वैसे ही सुपर हीट पैदा करके यूज कर सकते हैं ना? लेट्स सी ओके हाँ, नाउ लेट्स सी। अगर वाटर क्वांटिटी हम कम यूज करेंगे तो स्टीम की क्वांटिटी भी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। इज इट? एंड दैट क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट टू रन द टर्बाइन्स ऑफ ब्लेड्स। वो उतनी क्वांटिटी नहीं रहती है कि वो टरबाइन के ब्लेड्स को रन कर सके। अगर स्टीम में पावर ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तभी वो टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगी। इज इट? और टरबाइन का ब्लेड्स रोटेट होगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, गियर बॉक्स में भी आगे यूज कर सकते हैं। अगर टरबाइन के ब्लेड्स ही रोटेट नहीं होंगे तो आगे गियर बॉक्स का यूज करके क्या फायदा। इज इट? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? Yes, anything else?